Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Government Rule Guru. So today I will discuss Central Civil Services Conduct Rules 1964, Rule 1 to 3. Preceding of that, already I have discussed sexual harassment and also it is related to the conduct rule. You can find this video in my playlist. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that you can get notification for upcoming videos. Definitely I will bring some good videos. So I do not want to waste more time. Now today I will discuss Central Civil Services Conduct Rules 1964, Rule 1 to 3. Other rules I will discuss in postering time. First one, Rule 1. Short title, commencement and application. This rule is very important one. Question is coming related to this. So CCS Conduct Rule 1964, Rule 1 related to short title, commencement and application. These rules may be called the Central Civil Services Conduct Rules 1964. Actually this rule implemented in 1964 and it came into force 30th November 1964. It is very important one. Just not only you remember the year but also the date is very important one. 30th November 1964 this rule came into force. Many times in examinations, departmental and principal examinations, the question has asked many times, so please remember it. They shall come into force at once. These rules shall apply to. इसमें हम देखेंगे कि ये रूल किसके लिए अप्लाई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस or post, including a civilian in defense service, in connection with the affairs of the union. It's very important one. First one, you remember, all the central government employees, those are doing work related to the affairs of the union. Then including civilian in defense service. Civilian in defense service, those defense personnel, they are working to protect the people from external and internal threat, and also they save the life of the people at the time of natural disaster. They evacuate the people, they displace the people, they mitigate the violence. Each and every time they try to prevent the commotion. Clear? So for these employees it is applicable. Second one, double I, applicability to honorary workers employed in civil post. जो लोग honorary worker हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनररी पोस्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है. एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दोज एम्प्लॉइज वर्किंग इन PSUs एंड एनी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस ऑपरेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए भी एप्लीकेबल है. एप्लीकेबिलिटी टू मेंबर्स ऑफ कमिटीज और कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी कमिटीज और कमीशंस गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है. applicable to employees of non-statutory departmental canteens. Next one, applicable to persons appointed as personal staff of a minister whose tenure with the term of office of the minister. जो पर्सनल स्टाफ रिक्रूट होते हैं पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर, उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है. फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे दीज रूल शाल नॉट अप्लाई टू, किसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं है. फर्स्ट वन, BTA में रेलवेज, फॉर रेलवे एम्प्लॉइज दिस CCS कंडक्ट रूल 1964 इज नॉट अप्लीकेबल. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देख लो. ए रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवेज एक्ट 1890, ए पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन द रेलवे बोर्ड and is subject to the railway services conduct rules, holding any post under the administrative control of the railway board or of the financial commission of railways. So just you remember
the employees of railways, basically for the employees of the railways, this rule is not applicable. CCS Conduct Rule 1964 is not applicable. Second one, this rule is not applicable for a member of an ऑल इंडिया सर्विस. जो भी ऑल इंडिया सर्विस में है उनके लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं है. Bit C, a holder of any post in respect of which the president has by a general or special order directed that these rules shall not apply. जब प्रेसिडेंट स्पेशल ऑर्डर देते हैं कि कोई जनरल ऑर्डर देते हैं कि इसी पोस्ट के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये रूल उस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, okay, this rule is not applicable for certain post. Next one, not applicable to posts and telegraphs extra departmental agents. जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स है, उनका जो काम है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं है यूनियन अफेयर्स के साथ, उनके लिए ये रूल भी एप्लीकेबल नहीं है. तो आपको ध्यान देना है फॉर whom दिस रूल इज एप्लीकेबल एंड फॉर whom दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, रूल 2 डेफिनेशंस. जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 जो रूल 2 है, डेफिनेशंस आता है. गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेना है. गवर्नमेंट सर्वेंट, अगेन गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दोज आर डूइंग वर्क रिलेटेड टू द यूनियन अफेयर्स and also those are working basically in civilian in a defense service. मैं बोल चुका हूँ civilian in a defense service, तो ये दोनों को लेना है. बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ए सिविलियन इन ए डिफेंस सर्विस. डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविलियन सर्वेंट्स है, जो लोगों को मदद करते हैं नेचुरल डिजास्टर टाइम में, जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट, वो एम्प्लॉइज के लिए लागू है. तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट के आकार में लेंगे. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेनेशन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ ए कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और ए लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट शाल फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स बी डीम्ड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट if its salary is drawn from consolidated fund of India as per Constitution's Article 266. जो भी एम्प्लॉइज कॉरपोरेशंस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, लोकल अथॉरिटी में, ओके, बट दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज एम्प्लॉइज ड्रॉन सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इट इज रिलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 266. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. कंटिंजेंसी फंड के लिए आर्टिकल 267 है, कंसोलिडेटेड फंड के लिए 266 है. तो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है, बेसिकली वी नो दैट रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इट गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. और एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो इट इज कमिंग फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ऑल द revenue receipts and expenditures, okay, so all the revenue receipts deposited in consolidated fund of India and also the expenditures, what type of expenditure made by the central government, also it is drawn from the consolidated fund of India. It is article 266. तो यहाँ पर जो explanation है, जो भी employees कोई corporations, organization, कोई company में काम कर रहे हैं और उसको central government control कर रहा है और उनका जो सैलरी ड्रॉन हो रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. क्लियर? जो कंटिंजेंसी फंड है, वहां पर जो भी खर्च होगा वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद. सो रिलेटेड टू द कंटिंजेंसी फंड, इट इज इन आर्टिकल 267. जस्ट टू रिमेंबर, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस इज मेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. And basically in case of contingency fund only at the time of natural disaster, at the time of natural disaster after approval of the president,
the fund is withdrawn and meet the needs of the affected people. Clear? मगर जो सैलरी ड्रॉन हो रहा है बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में और उनका जो सैलरी ड्रॉन हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उनको यहाँ पर हम गवर्नमेंट सर्वेंट के आकार में लेंगे. बीट सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट. ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 है, वहाँ पर हम फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन फैमिली इन सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964. फर्स्ट वन, द हस्बैंड, द वाइफ और हस्बैंड as the case may be of the government servant, whether residing with the government servant or not, but does not include a wife or husband as the case may be separated from the government servant by a decree or order of a competent court. सपोज जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसका वाइफ के साथ रहता है और सेपरेटली वो दोनों रहते हैं, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं. इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइड जॉइंटली विद द वाइफ और गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइड सेपरेटली फ्रॉम द वाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यदि गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वाइफ वो सेपरेट हो जाते हैं कोर्ट ऑर्डर से, तब हम वहाँ पर वाइफ को फैमिली मेंबर के आकार में नहीं लेंगे. हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, मगर हस्बैंड वाइफ से अलग हो चुका है कोर्ट ऑर्डर से, तब वाइफ को हम फैमिली मेंबर में नहीं लेंगे. अदर केस में हस्बैंड वाइफ अलग रह सकते हैं और मिलकर रह सकते हैं, वहाँ पर हम फैमिली मेंबर के आकार में लेंगे. मगर वो दोनों जब सेपरेट होते हैं कोर्ट ऑर्डर से, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका वाइफ से वो अलग हो चुका है कोर्ट ऑर्डर से, तब उसका वाइफ को हम फैमिली मेंबर के आकार में नहीं लेंगे. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड वन, सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर. सन डॉटर, नेचुरल सन और नेचुरल डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर, सबको लेना है, बट दे होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट. क्लियर? but does not include a child or a stepchild who is no longer in any way dependent on the government servant or of whose custody the government servant has been deprived by or under any law. तो यहाँ पर जो चाइल्ड की स्टेप चाइल्ड वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो उनको नहीं लेंगे फैमिली मेंबर में. और ये भी हो सकता है जैसे कोर्ट ऑर्डर से गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई राइट नहीं है उसका चाइल्ड के ऊपर, क्योंकि वो उसका वाइफ से अलग हो चुका है कोर्ट ऑर्डर से. और यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेसिकली हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है और कोर्ट ऑर्डर से वो वाइफ से अलग हो चुका है, मगर कोर्ट का ऑर्डर से जो चाइल्ड है वो चाइल्ड हस्बैंड के पास नहीं रहेगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास नहीं रहेगा, वो उसका वाइफ के पास रहेगा. तो उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट की केस में, इस केस में चाइल्ड को फैमिली मेंबर के आकार में नहीं लिया जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पर 2-3 चीज आपको ध्यान देना है. बेसिकली डॉटर और सन, स्टेप डॉटर और स्टेप सन, दोज हु आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट. Okay, it means they are included in the family member. But when the child or stepchild, they do not depend upon the government servant, then they are not included in the family member. Or if the government servant has no custody over the child, in this case the child also is not included in the family member. Next, any other person related whether by blood or marriage to the government servant or to the government servant's wife, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का ब्लड रिलेशन है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट का वाइफ का साइड में जो रिलेटिव्स है, मगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट का ब्लड रिलेशन हो, सपोज यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को हम हस्बैंड को लेंगे, चाहे उसका ब्लड रिलेशन हो और चाहे वाइफ का कोई ब्लड रिलेशन हो, मगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको फैमिली मेंबर में लेंगे. एनी अदर पर्सन रिलेटेड whether by blood or marriage to the government servant or to the government servant's wife or husband and wholly dependent on the government servant. तो ये फैमिली मेंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा ध्यान देना है. अभी रूल 3, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. रूल 3 जो जनरल रूल्स है,
फर्स्ट वन जो वन में है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे मस्ट अडॉप्ट, दे मस्ट इमिटेट, दे मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस properly. If they deviate it, then stringent action, disciplinary action would be initiated against them. So क्या क्या रूल्स है, किसको हम फॉलो करेंगे, उसको हमको देखना पड़ेगा. फर्स्ट वन, बीट आई में मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी. डबल आई मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी. डिवोशन टू ड्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आता है. एनी टाइप ऑफ इट मीन्स जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई डिवोशन टू ड्यूटी. इफ एनी वर्क assigned to the government employee and very carelessly and in laxity approach, if the government servant handle the work and unable to complete the work within stipulated period of time, then it is basically, it is happened only due to the irresponsibility of the government servant, then it is lack of devotion to duty. कोई भी काम असाइन किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो ठीक से काम को ठीक टाइम में नहीं कर पाया और क्वालिटी के हिसाब से नहीं कर पाया, तो वो डिवोशन की ड्यूटी के खिलाफ होगा. क्लियर. थर्ड पॉइंट, डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर एक क्लू देता हूं. एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं. तो इस यही इट इज वन एग्जांपल में दे दिया, इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. तो हमको ईच एंड एवरी टाइम द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एक क्लू देता हूं, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड हैव रेस्पेक्ट टू द वुमेन एम्प्लॉइज. सो डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. तो अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लू दिया, इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. नेक्स्ट, commit himself to and uphold the supremacy of the constitution and democratic values, defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the state, public order, decency and morality, maintain high ethical standards and honesty, maintain political neutrality. Maintain political neutrality, the government employees should not involved in any type of political association. On behalf of the political association, the government employees should not make any propaganda or should not make any type of advertisement. Clear. So each and every time they must set apart from political associations and from political propagandas and from political agenda. So it is maintain political neutrality, promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties, maintain accountability and transparency, maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section, maintain courtesy and good behavior with the public. Because you know that basically government, many government employees directly or indirectly deal with the public, so they must behave properly. Their manners should be decent one when they deal with the public. It is very important one. It is the courtesy. Maintain courtesy and good behavior with the public. Take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically. Declare any private interest relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest. Each and every time the government, जो point एक स्ट्रिपला है, each and every time the government employees should protect the public interest, because each and every time they are doing work for the public. Clear. Then XIV, not place himself under any financial or other obligations to any individual or organization which may influence him in the performance of his official duties. बहुत clear है. Not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends. Make choices, take decisions and make recommendations on merit alone. Act with fairness and impartiality
and not discriminate against anyone, particularly the poor and the underprivileged sections of the society. ये भी बहुत important है. XVII, there is basically for the government employees there is no discrimination for the rich, middle and weaker sections of the society. All are same for him or her. Each and every time the government employees basically deal with poor and underprivileged sections properly, so that these sections should not be deprived of getting facilities. Clear? Refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices. Maintain discipline in the discharge of his duties and be liable to implement the lawful orders daily communicated to him. Maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the state, strategic, scientific or economic interest of the state, friendly relation with foreign countries, or lead to incitement of an offense or illegal और अनलॉफुल गेन टू एनी पर्सन. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको पब्लिक में डाइवर्ज नहीं करेगा कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो खतरा हो सकता है. ऐसा कोई भी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा जो उससे कम्युनल वायलेंस हो सकता है और it stimulated raucous type of situation in the society or violated type of society. तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. XX पॉइंट. XXI पॉइंट, परफॉर्म्स एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज विद अ हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज. ये सब जनरल पॉइंट्स फास्ट में आता है. सेकंड पॉइंट में देखेंगे उसी जनरल रूल्स में जो रूल 3 जो जनरल रूल्स है, सेकंड पॉइंट में देखेंगे बीट आई एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all government servants for the time being under his control and authority. जो भी सुपरवाइजिंग पोस्ट में है उनको इंश्योर करना है कि उनका अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं. जो सुपरवाइजर है वो हेड है, तो सुपरवाइजर मस्ट एंश्योर दैट क्लियर his or her subordinates must do work with integrity and also always devotion to duty. II, no government servant shall in the performance of his official duties or in the exercise of powers conferred on him act otherwise than in his best judgment, except when he is acting under the direction of his official superior. So ये बहुत important है. Second one, each and every time the government employees do the work according to the guidelines, according to the parameter, and also follow the proper guidelines of the superiors, because even we know that always the superior officers they guide their subordinates how to complete the work, what type of strategies should be maintained, what type of plans should be maintained, so that the work must be completed in time and the work must be qualitative one. मगर ये जो second point है, so no government servant should deviate from the proper guidelines, no government servant should deviate from the proper parameters for completion of work. Third point, the direction of the official superior shall ordinarily be in writing. Oral direction to subordinates shall be avoided as far as possible. ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कभी कभी हमारा जो सुपीरियर ऑफिसर्स है हमको ओरली डायरेक्ट करते हैं, कभी कभी सुपीरियर ऑफिसर्स उनका सबऑर्डिनेट्स को ओरली डायरेक्ट करते हैं, मगर एक्चुअली रूल नहीं है. जब ओरली डायरेक्ट करेंगे मगर उसके बाद इमीडिएटली उनको राइटिंग में देना है. ईच एंड एवरी टाइम सुपीरियर ऑफिसर्स providing instruction to their subordinates through writing, not through oral way. यदि कभी कभी वो
ओरल में कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इसके बाद इमीडिएटली उनको राइटिंग में देना है। Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter. Fourth point, a government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible. Whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing. जो फोर्थ पॉइंट है, कभी कभी सुपरियर ऑफिसर्स वो ओरली डायरेक्ट करते हैं उनका सबऑर्डिनेट्स को, मगर उसके बाद वो इमीडिएटली वही इंस्ट्रक्शंस को राइटिंग में उनका सबऑर्डिनेट्स को देते हैं और उनको कंफर्म करते हैं कि जो भी मैं ओरली आपको बोला था मैं अभी राइटिंग्स में आपको दिया, तो ये होना चाहिए। ओके, ओनली ओरली नहीं होगा, ओरली होगा तो कभी कभी ओरली होता है, मगर इमीडिएटली उसके बाद सुपरियर ऑफिसर्स उसको राइटिंग में उसका सबऑर्डिनेट्स को देना होगा और उसको कंफर्म करना होगा। बेसिकली सुपरियर ऑफिसर्स दे मस्ट कंफर्म टू द सबऑर्डिनेट्स कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आई हैड गिवन इन ओरली, नाउ ऑलरेडी आई हैव गिवन इन राइटिंग एंड नाउ आई कंफर्म टू यू। अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन को जाएंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैबिचुअली फेल्स टू परफॉर्म द टास्क assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected to him shall be deemed to be lacking in devotion to duty. अभी मैं बोला था what is lacking in devotion to duty. तो डिवोशन टू ड्यूटी मीन्स जो भी वर्क असाइन किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, उसको टाइमली कंप्लीट करना चाहिए और वो वर्क भी क्वालिटेटिव होना चाहिए। तो ये है डिवोशन टू ड्यूटी। यदि एम्प्लॉयज़ इरेस्पॉन्सिबल हो जाता है, केयरलेसली वो वर्क को हैंडल करता है और कंप्लासेंसी एंड लैक्सिटी अप्रोच में वो काम करता है और जो वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, तो वो है लैकिंग इन डिवोशन टू ड्यूटी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। एक्सप्लेनेशन 2, ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू इवेड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम और अप्रूवल ऑफ a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 2, इसमें क्या है, कभी कभी ये गवर्नमेंट सर्वेंट वो काम को अवॉइड करता है, वर्क को अवॉइड करता है कि बोलता है कि सुपरियर ऑफिसर मुझे इन्फॉर्म किया है कि ये काम नहीं करना है, उस तरीके से वो बोलकर वो वर्क को अवॉइड करता है। तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी वर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को असाइन होता है तो उसको करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये बोलते हैं कि मेरा सुपरियर ऑफिसर को मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ और उनका इंस्ट्रक्शन मैं ले चुका हूँ कि ये काम मैं नहीं करूँगा। तो कभी भी इस तरीके का नेसेसरी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ये होता है तो ये बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट ऑफ द कंडक्ट रूल। इन दिस केस ऑल्सो डिसिप्लिनरी एक्शन वुड बी इनिशिएटेड, ओके, अगेंस्ट द एम्प्लॉई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर जो शिष्टाचार, जो बिहेवियर मैनर्स के बात आता है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूल जो है 3A बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी आता है। क्वेश्चन आता है कि किस रूल में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी है। इट इज CCS कंडक्ट रूल 1964 में रूल 3 सेक्शन A में है। No government servant shall in the performance of his official duties act in a discourteous manner. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। each and every time basically the government employees should behave properly. Their behavior and manners should be decent one. They must behave, it means they many ways directly or indirectly they deal with the public so that they behave properly with the public. Their manners should be decent one. So ये चीज़ को ध्यान देना है। ओके, तो in the performance of his official duties act in a discourteous manner, ये खिलाफ है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन, इन हिज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डिलेटरी टैक्टिस और विलफुली कॉज डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइन टू हिम। कभी कभी क्या है, उसको वर्क असाइन किया जाता है, एक पब्लिक का वर्क उसको कंप्लीट करना है, मगर वो जानबूझकर उसको डिले करता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए।
कोई वर्क असाइन किया जाता है फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पीपल कि फॉर एनी इंडिविजुअल बेनिफिट, तो उसको वो टाइम बाउंड के हिसाब से उसको करना है। तो ये प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी में आता है। और उसमें और 2-3 चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो MLA MPs और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सो द गवर्नमेंट सर्वेंट should accept the instructions of member of the legislative assembly and member of the parliament decently. They listen all the advice properly. Clear? In some cases, if they do not accept their orders, then they must give the reason in writing. तो हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, MLA MPs है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको अच्छे से व्यवहार करना है, उनका बिहेव अच्छा होना चाहिए, वो जो एडवाइस दे रहे हैं उनको सुनना चाहिए, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सुनना चाहिए। और कभी क्या है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनका इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको राइटिंग में रीजन देना है। क्लियर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी, they do not involve in any proselytization जो inside the people to change the religion, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्शन 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी का बात आता है। नेक्स्ट वन जो रूल 3B है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट ऑल टाइम्स act in accordance with the government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड है, एज ऑफ मैरिज है कि रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, कल्चरल हेरिटेज है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली। ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ये 2 चीज आता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये रूल 3B में है। CCS कंडक्ट रूल 1964 रूल 3B, यही रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लियर? नेक्स्ट 3C, रूल 3C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये रूल 3C में आता है। तो CCS कंडक्ट रूल 1964 मेरा पार्ट 1 वो है, वो पार्ट 1 सेक्सुअल हरासमेंट पार्ट 1 CCS कंडक्ट रूल में पढ़ा है मेरा प्ले लिस्ट में। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई चैनल। अगेन माई चैनल नेम इज असित गवर्नमेंट रूल गुरु। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that again you can get notification for upcoming videos. तो चलो अभी चलेंगे prohibition of sexual harassment of working women. No government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at any workplace. Every government servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at the workplace. जो भी institution का head है, he or she has taken responsibility. The head of the institution should have taken responsibility to protect the women employees in workplace. It is the responsibility of the head of the institution, so that all the women employees must be safe and secure one. Clear explanation for the purpose of this rule. Sexual harassment को हम कैसे define करेंगे? हाउ टू डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत कुछ पॉइंट दिया है। ये सबको हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जस्ट वी एक्सेप्टेड, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। ये थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड वन, द फॉलोइंग circumstances among other circumstances if it occurs
or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment. अभी और कुछ देखेंगे, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होता है. फर्स्ट वन, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, और इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट of detrimental treatment in employment, implied or explicit threat about her present or future employment status, interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her, or humiliating treatment likely to affect her health or safety. ये भी सब सेक्सुअल हरासमेंट में आता है. क्लियर? वर्कप्लेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट में किसको वर्कप्लेस में इंक्लूड किया जाएगा? बीटा यानी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government. Second one, hospitals or nursing homes, any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto. Any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employee for undertaking such journey, a dwelling place or a house. ये सब वर्क प्लेस के अंदर जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है. और एक एडवाइस है, जब कोई गवर्नमेंट इन्वाइटेशन आता है वो नेम में नहीं आता है, वो डेजिग्नेशन नाम में आता है. सो एनी टाइप द गवर्नमेंट इन्वाइटेशंस विल नॉट बी इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, but only the designation will be used. Any type of invitations on behalf of the government is coming, then it is not coming related to the name of the government servant, but it is coming related to the designation of the government servant. लास्ट में मैं थोड़ा कंटिंजेंसी फंड इसको डिस्कस कर चुका हूँ. ये जो आर्टिकल 267 है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो ये जो फंड है, मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स लाइक द फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा, द फंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट and any appropriation out of this fund does not need prior approval of the parliament or assembly. तो consolidated fund में पार्लियामेंट और असेंबली में अप्रूवल चाहिए, तब कंसोलिडेटेड फंड से मनी विथड्रॉन होगा. मगर कंटिजेंसी फंड में ओनली प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए. और ये सब है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स, कभी फ्लड्स, कभी अर्थक्वेक्स, कोई एनी टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर होता है, तब प्रेसिडेंट का अप्रूवल से मनी विथड्रॉ किया जाता है और एक्सपेंस को मीट किया जाता है. तो ये है, ये रूल 1 to 3 में डिस्कस किया. तो नेक्स्ट मेरा जो कंडक्ट रूल्स के ऊपर वीडियो आएगा तो अदर रूल्स के ऊपर होगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु, so that you can get notification in subsequent time. Thank you.